Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we have to do the questions of the poem My Mother at 66 and which has been written by Kamala Das. Dear students, आप अपनी टेक्स्ट बुक पर देखिए. क्वेश्चन नंबर 1 is how does the poet describe her mother in the poem. यानी हमने पढ़ा पहले सिटेंजा में हमने पढ़ा दो जो सिटेंजा फर्स्ट है उसमें हमने पढ़ा कि पोइट जो है वो कैसे अपनी माँ को बयान करती है, यानी किस तरह से अपनी माँ को बयान करती है. एंड इन द फर्स्ट सिटेंजा ऑफ दिस पोएम we have learned that the poet calls the day when she was driving from her parents' home to Cochin, where she was to catch a flight. It was a Friday morning, and her mother was also sitting sitting by her side. She was going to the airport to see off the poet, but when the poet turned a look to her mother, she found her dozing. Her mouth was open, and her face looked very pale, like that of a corpse. A painful thought came to the poet's mind. She realized that her mother had become very old and would not live for long. And in this stanza, we read that the poet describes how poet describes her mother. The poet describes her mother as a very old lady who was dozing on their journey to Cochin. जब वो कोचिन जा रहे थे, गाड़ी में बैठे थे, तो उसने देखा कि उसकी माँ जो है वेरी ओल्ड लेडी, जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, और वो क्या है वो जो है नींद की वजह से वो सफ़र के दौरान कोचिंग जो उनका सफ़र जारी था कोचिन की तरफ, तो उसने देखा कि उसकी जो माँ है वो सीट पर ऊँग रही थी. Her mouth was open just like how the mouth of old people becomes. उसका माउथ ऐसे ही ओपन था जैसे कि ओल्ड पीपल का माउथ जो है खुला रहता है when they sleep, जब वो सोते हैं. Her facial, dear students, it is facial, facial. Her facial and facial expression. Facial means external expression, external look, जिसको हम कहेंगे. Her facial expression means her external look, her external appearance or look was grey, that has been compared as similar to that of a corpse. यानी उसका जो है उसको तशबीह दी गई है किसके साथ, एक लाश के साथ, एक मुर्दा जिस्म के साथ. इसी तरह से उसकी जो है अपीयरेंस, उसका जो ज़ुहूर ज़ाहिरी तौर पर देख रही थी, इतनी नहीं सफ़ेद देख रही थी, उसके बाद सफ़ेद हुई थी, और उसको कंपेयर किया गया किसके साथ, एक डेड बॉडी के साथ. तो इस तरह से पोइट ने अपनी माँ को डिस्क्राइब किया है, उसको बयान किया है. तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ऑफ वाई डज द पोइट लुक आउटसाइड. पोइट आउटसाइड जो है क्यों देखने लगी. What activities does the poet see outside the car window? And हमने स्टेंजा 2 में ये पढ़ा कि पोइट जो है वो बाहर क्यों देखने लगी, और वहाँ अगर फिर जब बाहर देखा गाड़ी से खिड़की में से बाहर की तरफ देखा, तो आउटसाइड द कार विंडो उसने क्या देखा. आप फिर से देखिए लाइन्स 5 to 10 को फिर से देखिए. द पोएट सोन ड्रो अवे फ्रॉम हर माइंड the thought of her mother's pale and aged face. She started looking out at the young trees that seemed to be running fast. She looked at the children running out of their homes in joy. At last, they reached the airport, and the poet went through the security check. Now, standing a few yards away, she looked at her mother once again. It is to be
noted that the poet had not spoken a word to her mother all through the drive, and even now she just looks at her from a distance. Perhaps it is a sad reflection of how indifferent the modern youth have grown towards their aged elders. और क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारा है क्वेश्चन नंबर टू जो हमारा है वाई डज द पोएट लुक आउटसाइड अभी हमने पढ़ा स्टेंजा में क्यों वो आउटसाइड देखने लगी व्हाट द एक्टिविटीज डज द पोएट सी आउटसाइड द कार विंडो तो कार की विंडो से बाहर उसने क्या देखा क्या एक्टिविटीज़ देखी द पोएट looked outside because she wanted to drive away the pain and agony. It is agony, agony. तो agony means dear student suffering, pain जो उसको तकलीफ़ हुई थी अपनी माँ को की ये हालत देखकर यानी वो अपनी माँ के ख्यालात में गुम हो गई थी कि मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है मेरी माँ कमज़ोर हो चुकी है मेरी माँ अब जो है बहुत ही जो है एक लाश की तरह दिखाई दे रही है तो इन ये थाट्स जो उसके दिल में उसके दिमाग में थे तो इनको दूर करने के लिए उसने क्या किया खिड़की के बाहर गाड़ी के की खिड़की जो उसके बाहर देखने लगी इन चीज़ों को इन थाट्स को दूर करने के लिए शी वाज एक्सपीरियंसिंग बाय लुकिंग एट हर एजिड मदर जो तकलीफ़ जो पेन उसको जो है उठी थी अपनी माँ को देखकर शी लुक्ड आउटसाइड एट द वर्ल्ड विच वाज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटीज़ आउटसाइड वर्ल्ड में उसने क्या देखा उसने देखा कि जो आउटसाइड वर्ल्ड है ये फुल ऑफ लाइफ है एंड फुल ऑफ एक्टिविटीज़ हैं तो वहाँ हर कौम जो है अपनी तरीके अपनी ढंग से चल रहा था और नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है इसी के साथ जो इसने क्वेश्चन में लिखा है वाई डज what activities does the poet see outside the car window? She saw young trees running past her and seemed to be running faster with the speed of the car. She watched little children running joyfully out of their homes. The poet uses these images for the purpose of contrast. तो उसने क्या देखा बाहर शी सॉ यंग ट्रीज रनिंग उसने देखा कि जो छोटे छोटे जो दरख्त हैं वो दौड़ रहे थे उसको 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 छोड़कर पीछे दौड़ रहे थे एंड सेम टू बी रनिंग फास्ट विद द स्पीड ऑफ द कार और कार की स्पीड की तरह जो है ऐसे लग रहा था कि दे वर रनिंग फास्ट बहुत तेज़ दौड़ रहे थे तो अच्छा आप देखिए जब हम गाड़ी में चलते हैं तो हमें लगता है कि दरख्त बाकी बाकी मकानात जो हम देखते हैं खिड़की से वो भाग रहे हैं असल में वो नहीं भाग रहे हैं असल में गाड़ी जो है तेज़ दौड़ती है वो अपनी जगह पर कायम वो तेज़ नहीं दौड़ते हैं ऐसा लगता है कि यही दौड़ रहे हैं तो शी वॉच लिटिल चिल्ड्रन उसने छोटे छोटे बच्चों को देखा जो घरों से जॉयफुली खुशी के साथ निकल रहे थे और जो है इन चीज़ों को इसने पोइट ने इन तस्वीरों को इन फिगर्स को उसने इस मकसद से इस्तेमाल किया कि एक मुकाबला हो जाए एक कंपेयर हो कंपेरिजन जो है कंट्रास्ट मीनस कंपैरिजन एक कंपैरिजन हो जाए कि वहाँ उसने क्या देखा माँ की तरफ क्या ख्यालात उसके दिमाग में आए और बाहर क्या देखा ये चीज़ें कंट्रास्ट करने के लिए उसने ये बातें लिखी तो डियर स्टूडेंट्स नीचे जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं फैशल एक वर्ड है FACIL फैशल जिसको एक्सटर्नल कहते हैं चेहरे का उर्दू में कहेंगे एक्सप्रेशन जो है एक्सप्रेशन मीन्स फेस लुक अपीयरेंस यानी इजहार अगोनी मीन्स सफरिंग शदीद आज़ार इमेज फिगर पिक्चर पर्पस मीन्स एम कंट्रास्ट मीन्स मुकाबला उर्दू में कहेंगे और कंपैरिजन इंग्लिश में इसकी मीनिंग है तो डियर स्टूडेंट्स we have learned that in this poem my mother at 66 Kamala Das says that it was a Friday morning. The poet was driving from her parents' home to the Cochin airport. Her mother was sitting beside her in the car. The mother was then 66 years old. While going, the poet turned to look at her mother. She found that the mother was dozing and her mouth was open. Her face was as pale as that of a dead person.
The poet painfully realized that her mother was not going to live long, but soon she drew this painful thought away from her mind. She started looking at the young trees on the roadside that seemed to be running past. She saw children running out of their houses in joy. After reaching the airport, the poet went through the security check. Her mother was standing outside a few yards away. After the security check, the poet again looked at her mother from their distance. The mother's face was pale white. It was as pale as the face of the moon in late winter. The poet felt an old familiar ache in her body. It was like she used to feel in her childhood when some fear overpowered her. Yet she spoke no word to her mother. All that she said was, "See you soon, Amma." The only thing the poet did was smile and smile and smile. Thanks.